हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा कि अर्जुन ने कैसे अपने डाउट्स पूछे और कृष्णा ने सवाल का जवाब देना शुरू किया। सेकंड चैप्टर में एक तरीके से समरी कृष्णा ने दे दी थी। और थर्ड चैप्टर के बिगिनिंग में अर्जुन का ये डाउट हुआ कि मुझे, एक तरफ आप कह रहे हो कि सेल्फिश चीज़ों के लिए नहीं आगे आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ आप वॉर करने के लिए कह रहे हो। तो इस डाउट में अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे डिसाइसिवली बताइए कि मुझे करना चाहिए ये कर्म या नहीं। और कृष्णा तब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर रहे हैं। हमें ये पर्टिकुलर सेक्शन स्पेसिफिकली इस चैप्टर में कर्म योग में इंकरेजमेंट दिया गया है। तो कर्म योग मीन्स भगवान से जुड़ना कर्मों के माध्यम से। ज्ञान योग में त्याग, रिनंसिएशन और तपस्या, ऑस्टेरिटी, नॉलेज हासिल करना, उससे भगवान से जुड़ने का ज्ञान योग में होता है। यहाँ पे कृष्णा बेसिकली अर्जुन को ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर आप ज्ञान योग के माध्यम तक आप पहुंच भी गए हो या आप एडवांस अपने आप को समझते हो, फिर भी आप अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कर्म को नहीं छोड़ो प्रीमेच्योरली। और ये आगे एलैबोरेट होगा। तो हम क्विकली ये देख लेते हैं 3.16, 16 और 17 हम एक बारी पढ़ते हैं, अभी फिर डिस्कशन करेंगे। एवं प्रवृत्ति तम चक्रम एवं एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हया नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ सजीवति। पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पॉपट अवेलेबल है? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads to a life full of sin. Living only for the satisfaction of senses, such a person lives in vain. Purport. The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yagna is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, the human form of life is especially meant for self realization. In either of the three ways, namely karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga, there is no necessity of rigidly following. हरे कृष्णा, आई थिंक Oh, Hare Krishna. Sorry, Prabhuji. Yeah, I just realized I was mute. Following the performances of the prescribed yagna for the transcendentalist who are above vice and virtue. But those who are engaged in sense gratification require purification by above mentioned cycle of yagna performance. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yagna system is planned in such a way that sensory conscious person may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts, but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigods. Therefore, the yagnas are directly aimed at the particular demigod mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna conscious. Because when one masters the performance of yagna, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yagna, one does not become Krishna conscious,
Such principles are counted as only moral codes. One should not, therefore, limit his progress by to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को वेदों में कहे गए जो यज्ञ हैं उनके बारे में एम्फसाइज देते हुए बता रहे हैं कि जो यज्ञों का पालन नहीं कर रहे उससे क्या होता है, कर्म लगता है नेगेटिव कर्म। तो नेगेटिव कर्म को पाप भी कहते हैं, सिन भी कहते हैं। तो उस तरीके से हम सिन लगेगा अगर हम वो नहीं करेंगे। और कई व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे एक फेमस कहावत है ना, कई लोग जीने के लिए खाते हैं और कई लोग, कौन पूरा करेगा? खाने के लिए जीते। एग्जैक्टली तो कई लोगों का काम ये है कि खाते रहना बस पूरे दिन। तो खाना एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सेंसेस को इंगेज करने के लिए। और जैसे हम सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स में इंगेज करते हैं अपनी इंद्रियों को, वो धीरे 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 करके उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमें उनसे अटैच करने का रिस्क दे देता है कि हम उस चीज़ से एडिक्टेड भी हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कृष्णा स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वेदों में जो गए कि बताए गए यज्ञ है, अगर उनका पालन हम करेंगे तो हम पाप से मुक्त रहेंगे। और हम सिर्फ इस कार्य से नहीं जिएंगे कि बस सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, नहीं। वो एक ऐसा कार्य है जो जानवरों के शरीर में भी करते आए हैं। इतने सारे जानवर हम देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सेंसेस को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर इंसान भी यही करेगा तो सेंसेस को सेटिस्फाई करने का ही गोल बना के रखेगा, तो जानवर और इंसान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसी लाइफ जो है ये कोई फायदेमंद नहीं है। सच अ पर्सन लिव्स इन वेन, मतलब उसकी लाइफ जो है वो बेकार ही हो गई। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि अभी ह्यूमन लाइफ मिली लेकिन यूज नहीं कर रहे हम उसको उस पर्पस के लिए जिसके लिए दी गई थी। एक फेमस एग्जांपल ऐसा आता है कि अगर मान लीजिए आपको एक बहुत एक्सपेंसिव कार दे दी जाए, और अगर उस कार को आप मान लो आपको फरारी दे दी, और वो बहुत एक्सपेंसिव कार है, लेकिन अगर आप उसको लेके जाएंगे वो कार्य करने के लिए जिसके लिए वो उपयुक्त नहीं है, जैसे अगर आप उसको खेतों में ले जाओ या मडी वाटर में ले जाओ और वहाँ पे उसको चलाने की कोशिश करो, फिर कहो यार कोई चल भी नहीं रही इतनी फास्ट, इतने मज़ा नहीं आया कोई, तो फिर जिसने आपको कार दी है, अगर किसी ने दी आपको कि हाँ भाई ये यूज़ करो, तो जिस पर्पस के लिए ये दी गई है आप अगर उस पर्पस के लिए नहीं करोगे तो वो ले लेंगे वापस। सरकार कभी कभार देती है फैसिलिटीज़ अपने कर्मचारियों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ करें तो सरकार वापस भी ले लेती है। अगर मान लो कोई आप में से एक कॉन्ट्रैक्टर है और आपको सरकार ने कहा यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनानी है, और उस बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार अलॉट करती है, और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने कहा मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर वो 10 करोड़ रुपए जो सरकार ने आपको दिए उसमें से 5 करोड़ आप अपनी पर्सनल चीज़ों में लगा दो, गिफ्ट्स वगैरह इधर उधर दे दो फैमिली में मेम्बर्स को, कुछ आप अपनी सेविंग्स में लगा दो, कहीं इधर उधर खा लो बेसिकली, और बाकी 5,000 में से एक आध बाकी 5 करोड़ में से एक आध करोड़ आप रिश्वत वगैरह दे दो, और बाकी 4 करोड़ आप लगा दो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए। और बाद में पता लग जाता है उनको कि भाई हमने जो इसे पूरे लॉट जो पैसे अलॉट किए थे और जिस तरीके से काम होना चाहिए था इसने वैसे नहीं किया, इसने भारी मात्रा में करप्शन किया। तो क्या वो फिर आगे से आपको कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे? क्या लगता है आपको? मेरा सवाल समझ में आया किसी को?
नहीं देंगे। नहीं देंगे प्रभु जी, क्योंकि नहीं उनको देंगे, पता चल गया बेईमानी की है आपने। बेईमानी की है ईमान दे, सरासर, हाँ। तो वो नहीं देंगे। तो उसी तरीके से क्या है, ये ह्यूमन लाइफ जो इंसान का शरीर हमें मिला है, ये हमें इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम वही चीज़ करें जो जानवरों के शरीर में हम करते आए हैं। जानवरों के शरीर में वही है, आहार निद्रा भय मैथुन, मीन्स ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ये चार चीज़ें हम जानवरों के शरीर में करते आए हैं, और अभी हमारे को इंसान का शरीर मिला है ताकि हम कुछ बेटर करें। अगर वही आपको 10 करोड़ दिए और आप पूरे 10 करोड़ बिल्डिंग पे ही लगाओ और बड़ी एक फर्स्ट क्लास बनाओ, तो लोग आपको और देंगे। आपको जो फरारी दी उन्होंने, उसको बिल्कुल उसी चीज़ के लिए यूज़ करो जिसके लिए वो है। और आप ट्रैक्टर को यूज़ करो खेतों के लिए अगर यूज़ करना है, या किसी और चीज़ को। तो उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ मिली है हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करने के लिए। अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता, इसका ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम एडवांस हो सकते हैं। अगर हम इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हम एडवांस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते और सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं सिर्फ, ऐसे लोगों का लाइफ जो है वेस्ट हो गया पूरा। अब यहाँ प्रॉपर्ट में प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं हमें कि आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में कई बार लोग कहते हैं वर्क हार्ड एंड एन्जॉय। वो कहते हैं आप बहुत अच्छे से मेहनत करो सुबह से शाम तक और उसके बाद एंजॉय करो। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड था, वो उसने देखा मैं भगवत गीता वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो होता है ना कई बार क्या होता है, लोगों को शेयर करने का मन होता है कि उनको भी बहुत नॉलेज है, उनको भी बहुत पता है। तो बोलने लगे मुझसे, कहने लगे कि ओ भगवत गीता, यस यस यस, मैं भी कर्म योगी हूँ। अच्छा, मैं कहा क्या आपका क्या कर्म योगा के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो उन्होंने कहा कर्म योगा मतलब बस अपना कर्म करो। तो क्या यही है कर्म योगा की अंडरस्टैंडिंग? आप में से कौन बता सकेगा? क्या ये सही जवाब है कि भाई अपना काम करते रहो, बस ये कर्म योगा हो गया? इसमें कुछ सही कुछ गलत लगता है आप लोगों को? क्या कहते हो? अनश्योर है लोग? किसी को क्लियर आइडिया नहीं है कर्म योगा का? प्रभु जी, आई थिंक कर्म इफ वी डू, मतलब बिना उसका कुछ फल की इच्छा के बिना कर्म करें, एंड वो कर्म को अगर भगवान में अर्पित कर दें, देन ओनली वी बिकम कर्म योगी। परफेक्ट, एक्सेलेंट, यस। तो कर्म के साथ साथ योगा की भी ज़रूरत है, अदरवाइज तो एक कर्म हो गया, कर्मी हो गए। अगर आप काम कर रहे हैं कि अपना कार्य करो, वो हो गया कर्मी। लेकिन अगर आप काम को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे पंकज प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया, वो कर्म योगा बनता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई लोग सिर्फ कर्म और उसके रिजल्ट को एंजॉय करने तक ही सोचते हैं कि हमारा काम है। और अर्जुन भी पहले चैप्टर में जब प्रश्न पूछ रहे थे, तब उनके प्रश्नों में आप देखेंगे कि अर्जुन भी इसी तरीके से बोल रहे थे कि मैं कैसे एंजॉय करूँगा, मैं अगर जीत जाऊँगा तो कैसे एंजॉय करूँगा। लेकिन यहाँ पे कर्म योगा तक लेके जा रहे हैं कृष्णा इसको। ये नहीं कह रहे कि आपको एंजॉय करना है, आपको अपना कर्तव्य पालन करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यज्ञ करना वेदों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क से होगा क्या? इस रिस्क से होगा कि हम मिसअंडरस्टैंड करके अप्लाई कर देंगे और समझ नहीं पाएंगे किस टाइम पे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा, इन तीन को का नाम लिया गया। तो कर्म योगा हमने बताया कैसे कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना, ज्ञान योगा मतलब नॉलेज, ऑस्टेरिटी, तपस्या के माध्यम से भगवान से जुड़ना, और भक्ति योगा मतलब प्रेम के माध्यम से भगवान से जुड़ना। जब भक्ति योगा होती है उसके अंदर
प्रेम के माध्यम से जो भी कर्तव्य करने की जरूरत है वो करेंगे। ये भक्ति योगा है। कर्म योगा वाले कर्मों के साथ उनका अट्रैक्शन इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर कर्म से, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे वो। और ज्ञान योग उनका ज्ञान से अष्टांग और तो अष्टांग योग अलग भी है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान योग जो है उसके अंदर ज्ञान अर्जित करके भगवान की सेवा में लगाने की इंक्लिनेशन जो है उसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग में भगवान सेंटर पे नहीं है, कर्म और ज्ञान है सेंटर में। और उसको भगवान से जुड़ना, वो प्रोपेंसिटी को इस तरीके से डोवटेल करना, लगाना, वो क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। भक्ति योगा में भगवान ही सेंटर है और भगवान की सेवाएं प्रेम से वो होती है भक्ति योगा। भक्ति योगा में भगवान के बारे में जानकारी ज़्यादा होती है। ज्ञान योग और कर्म योग में भगवान को सेंटर नहीं और भगवान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बिना भी प्रैक्टिस हो सकती है और होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग यज्ञों को ठीक से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन कलयुग में ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाते। और कई तरीके के यज्ञ हैं और इन यज्ञ को फॉलो करने के लिए जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है भक्ति योगा में, उसको एक्चुअली बाकी यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं। कई सारे यज्ञ होते हैं जो देवी देवताओं के ऊपर समर्पित होते हैं, कई सारे भगवान विष्णु पे समर्पित होते हैं, कई यज्ञ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते इस कलयुग में करवाना। हाईएस्ट और बेस्ट और सबसे इजी यज्ञ कलयुग के लिए जो रेकमेंडेड है वो है हरि नाम संकीर्तन। तो वो तो करना ही चाहिए। और अगर वो करते हैं तो हम सीधा भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। और वो भक्ति योगा में एम्फेसिस है उसका। और भक्ति योगा जो कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, उनको बाकी यज्ञ की जो है इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाकी सारे स्टेजेस को बाईपास कर चुके हैं। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग या फिर ऑर्डिनरी लिविंग जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, उन सब के लिए यज्ञ करने, अलग अलग तरीके के यज्ञ की का प्रावधान दिया गया है शास्त्रों में। और वो उनको क्या कहते हैं, इंकरेज किया जाता है कि आप ये करिए। और अर्जुन भी बता रहे थे कि कैसे अगर ये यज्ञ जो है वो नहीं करें पहले चैप्टर में, कि तरीके की यज्ञ नहीं करा जाए तो इससे जो है फैमिली डायनेस्टी खराब हो जाती है। और आगे वाली जनरेशन अगर पिछली जनरेशन के लिए पिंड दान वगैरह ये सब यज्ञ नहीं करेंगी तो जो पूर्वज हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी जर्नी जो है भगवान की तरफ वो इम्पीड हो जाती है, उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई भक्ति योगा में जुड़ा हुआ है, जैसे प्रहलाद महाराज पूरे शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्रेम का जो रिलेशनशिप भगवान से हुआ उससे सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई उनके लिए क्लियर, रास्ता पूरा क्लियर हो जाए। जैसे आप देखते हो अगर मान लो किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति को जाना है कहीं हाईली सेंसिटिव एरिया में, कोई प्रेसिडेंट हाउस या पार्लियामेंट में कहीं कोई देखने के लिए जाना है, तो आपको कई सारे टिकट्स वगैरह अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन वही कोई सरकार का मिनिस्टर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली जा सकता है। या कोई प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का बंदा है, बेटा बेटी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा जा सकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान के जब हम इनर सर्कल में आ जाते हैं तो वो होती है भक्ति योगा, फिर चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। उसको हर चीज़ वो करने की ज़रूरत नहीं है जो बाकियों को करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। यस माता जी। कर्म योगा बोल रहे हैं, मतलब जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज है लाइफ में जो हम करते हैं वो उससे है कि उसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है उसमें? कर्म योगा डेली लिविंग की एक्टिविटीज से ही इनफ है ये, या उससे कुछ ज़्यादा करना है, ये क्वेश्चन है। तो डिपेंड करता है आप किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, किस तरीके से उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कर्म योगा है या सिर्फ कर्मा है। ठीक है, अगर वो भगवान से कनेक्शन ठीक हो है। रहा है
तो वो कर्म योगा हो गया। हम्म, और अगर उसका ओके, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर वो कर्मा हो गया। ठीक है। अब जैसे एक डिवोटी भी जाता है मार्केट, वो भी सब्जियां लेके आएगा, सब्जियां ला के उसको वॉश करेगा। हम्म, जो आम आदमी है वो भी जाते हैं मार्केट ग्रोसरी लेने, सब्जियां वगैरह लेके आते हैं अपना। अब वो लोग कुक करते हैं उसको अपने परिवार को और खुद खाते हैं। और जो डिवोटी है वो भी लाता है, कुक करता है, पर बांटता भी है, परिवार को भी देता है। ओके, बस एक फर्क है कि जो भगवान, डिवोटी कर रहा है वो ला के सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाता भगवान, है, भगवान को ऑफर करता हम्म, है। और क्योंकि उसने वो एक भगवान को ऑफर किया और उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ या बना हम्म, रही हूँ, तो इसलिए वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। वो या कर्म योगा या भक्ति योगा के प्लेटफॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना। और वही हम्म, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो उसमें कर्मा आ जाता है, वो योगा कुछ नहीं हुई इसमें। ये एक सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ही अगर आप देख लें, अपने घर को आप साफ कर रहे हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये भगवान का घर है, भगवान का घर है, मैं तो सेवक हूँ यहाँ पे, और भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो आप, तो वो भक्ति योगा या कर्म योगा में आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप अपना घर साफ कर रहे हैं, कोई उसमें भगवान का रोल नहीं है, और भगवान आपके घर में आपने ऐसा कोई एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो फिर वो कर्मा हम्म, में। ओके, अगर आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखने हैं, आपके जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि भगवान के द्वारा दिए गए गिफ्ट है मुझे, इन सब के हाँ, अंदर आप देखोगे कि कैसे भगवान से ये जुड़े हुए हैं, और कैसे आप इनको अगर भगवान का प्रसाद दो और भगवान के बारे में इनसे के साथ शेयर करो और इनको इंकरेज करके किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में आप लगाओ, तो फिर आप एक्चुअली जो कर रहे हो वो कर्म योगा या भक्ति योगा हाईएस्ट लेवल की है। लेकिन अगर आप ओके, जस्ट फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहे हो जैसे कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी फैमिली, आप हम्म, देखो उनके अगर बच्चे चले जाएं तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं। तो इस तरीके से हम्म, जो हमारी प्रोपेंसिटी है, अपने इमोशंस हैं हमारे, वो सारे इमोशंस दूसरी स्पीशीज में भी होते हैं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ओके, तो हम आगे चलते हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्याद्, यस्तु यस्तु यस आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च आत्मतृप्तश्च मानवः मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् आत्मन्येव आत्मन्येव च आत्मन्येव च च सन्तुष्टः सन्तुष्टश्च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य 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 कार्यं न कार्यं न विद्यते। 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 कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन फॉरवर्ड? मैं पढ़ देती प्रभु जी। प्लीज पढ़ी माता। Translation. But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. Purport. A person who is fully Krishna's conscious and is fully satisfied by his act in Krishna's consciousness no longer has any duty to perform. Due to his being Krishna's conscious, all impiety within is instantly cleansed, an effect of many, many thousands of yajna performances. By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, and similar infatuations. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक Krishna. यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ कृष्ण ने कंपेयर किया, देखो पहले वाले श्लोक में कृष्ण बता रहे थे कि कौन लोग जो बिल्कुल वेदों को फॉलो नहीं करते और वेदों के दिए सैक्रिफाइस नहीं करते, और
इंद्र तृप्ति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और जो है भगवान के साथ इतनी रुचि नहीं है उनकी, तो ऐसे लोगों बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उनको पाप लग सकते हैं और बहुत उनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तो भूल ही जाओ, मटेरियल फील्ड में भी उनको नेक्स्ट जन्म कैसा मिलेगा ये पता नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है उसमें। लेकिन वो व्यक्ति जो भगवान के अंदर प्लेजर इन द सेल्फ, यहाँ पे जो प्लेजर इन द सेल्फ है ये मतलब कि आत्मन, आत्मन मीन्स ब्रह्मन, जो कि भगवान और हमारी नेचर है, हमारी और भगवान की नेचर स्पिरिचुअल नेचर है। जो मैटर है मटेरियल वर्ल्ड में उसकी नेचर स्पिरिचुअल नहीं है, वो बना हुआ है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से, ये के सारे मटेरियल चीज़ें हैं, इसका ये शरीर बना हुआ है। लेकिन इसमें स्पिरिचुअल क्या है, इसमें ये शरीर के अंदर एक जीवा है और एक परमात्मा है, ये स्पिरिचुअल है। तो जो स्पिरिचुअल चीज़ों में आनंद लेता है ऐसा व्यक्ति जो है उसकी ह्यूमन लाइफ जो है वो परफेक्ट हो रही है, ऐसा व्यक्ति बहुत संतुष्ट होता है, पूरी तरह से वो एकदम सेशिएटेड, मतलब एकदम उसकी तृप्त हो गई, आत्म तृप्ति हो गई। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ड्यूटी है ही नहीं। मतलब एक तरफ तो ऐसे लोग हो गए जिनके लिए ड्यूटी है और वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा महान व्यक्ति बताया गया है जो पूरी तरह से आत्मा अंदर, वो इंटरनली अपने इंटरनल्स में भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको रिलिश करके आनंद उठा रहा है। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अब वो भगवान से कनेक्शन हो गया, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन या ड्यूटी नहीं है। प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि पूरी तरह से जो भक्ति में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ चुके होते हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं और उनको कोई ड्यूटी, उनको कोई और कर्तव्य करना नहीं है, वो इसी को फोकस बनाते हैं। और इसके अलावा अगर वो दूसरी चीज़ें करते भी हैं ना तो उनको ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की स्टेज में हमें ज़रूरत है बाकी चीज़ें करने की, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आ चुके हैं। इसका मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी उन्होंने पहले ही पूरी कर ली हैं, पिछले जन्मों में इतना उन्होंने कर लिया है जो नीडेड है कि वो आज यहाँ पे हैं, तो उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कई बारी कई कई ऐसे मॉडल्स होते हैं शॉपिंग के कि भाई आपको वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप मेंबरशिप लोगे तो आपके लिए बड़ा सस्ता हो जाएगा या आपके लिए फ्री हो जाएगा, मेंबर्स के लिए फ्री है, बाकी लोगों को पैसे देने हैं। तो ये मेंबरशिप है, स्पिरिचुअल मेंबरशिप। अगर हम स्पिरिचुअल मेंबरशिप लेके भगवान में कृष्णा कॉन्शियस हो जाए पूरी तरह से, तो फिर हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग यज्ञ, अलग अलग कांड, अलग अलग पूजा, अलग अलग चीज़ें नहीं, अब डायरेक्ट कनेक्शन हो गया भगवान से। जो यज्ञ थे सारे पहले ही हो गए, पिछले जन्मों में ख़त्म कर चुके हैं, अभी मेंबरशिप ले ली इस बारी। तो इसी तरह से यहाँ पे भगवान की मेंबर स्पिरिचुअल उसमें जो मेंबरशिप ले लेता है उसको बाकी चीज़ें एक एक पॉइंट पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अदरवाइज एक एक चीज़ पे करना पड़ेगा आपको, पूजा रिचुअल अलग अलग चीज़ें। और कई बार ढोंगी लोग तो लोगों को बेवकूफ़ बना के खूब पैसे भी ऐंठ लेते हैं, तो वो सब कुछ उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा भगवान के साथ कनेक्शन हो सकता है अगर आप प्रोसेस फॉलो करो जो भगवत गीता में दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस लेवल पे आ जाते हैं उसको बाकी ड्यूटीज़ करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इनफैक्ट हम देखते हैं कई बार लोग संन्यास लेते हैं। अब संन्यास मतलब कि अपनी फैमिली से आप बिल्कुल कट हो गए हो, क्योंकि अब आपकी सारी दुनिया ही आपकी फैमिली हो गई है। संन्यास का ये मतलब है कि अब आप प्रेफर नहीं करोगे अपनी फैमिली को, अब सारे लोग जो हैं वो आप उनको एक दृष्टि से ही देखोगे और उनको सबको हेल्प करोगे, तो ये हो गया संन्यास। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते, आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की तरफ है। जब पगार आती है, जब आपको इनकम आती है, आप ऐसे बांटते नहीं फिरते सबको कि सबको इक्वली मैं दूंगा, नहीं। आप कहते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, पहले अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, और फिर मैं चैरिटी दूंगा जो है मेरे पास बाकी रिमेनिंग, तो वो अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम में कर सकते हो, हाउस होल्डर लाइफ में ये अप्रोप्रिएट है। लेकिन सन्यासी सबको सबको बांटते हैं, तो वो उनकी लाइफ जो है सबके लिए।
तो ऐसे लोगों को सारे संस्कार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैरिज जो है वो भी एक संस्कार है, और वो मैरिज का संस्कार रिकमेंड किया गया है शास्त्रों में कि आप करो। अगर आप नहीं करोगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि सेंसेस को प्रॉपरली इंगेज करना है भगवान की सेवा में, और नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आएंगे उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। तो अगर व्यक्ति ये नहीं करेंगे तो वो गलत कामों में पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं आजकल मैरिज को इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता, वो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स और ये सब रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, और इसमें बेसिकली जो गर्ल है उसको चीट करके निकल जाते हैं लड़का। तो ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, ऐसे चीटिंग बिहेवियर नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती थी कि आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, बच्चों की अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब आजकल हम देखते हैं ये सारी चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको एक्चुअली दोनों माँ बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा, और क्योंकि उनको पूरी तरह से प्यार, अटेंशन, लव, केयर नहीं मिल पा रही, वो बेचारे बड़े सारे साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, हम देखते हैं। तो ये बचपन से उनका एटमॉस्फेयर कैसा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो पहले शास्त्रों में इस चीज़ की विधि थी कि नहीं, आपको शादी करनी है, तो शादी का संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसलिए पहले के लोग बड़ा एम्फेसाइज करते थे कि टाइमली बच्चों की शादी हो जाए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, ऐसा व्यक्ति जो संन्यास लेने जा रहा है उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि शादी करें। वो ब्रह्मचारी बन के फिर सीधा संन्यास आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर और बहुत लिमिटेड ही होंगे। वरना कई लोगों ने आजकल सन्यासी के भेष डाल के लोगों को चीट करना का बिजनेस बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, ऐसे लोगों से हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मगर हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं जो सही में डेडिकेटेड हैं इस बात में, और ऐसे लोगों की ये कॉन्शियसनेस, ये क्वालिटी है कि वो कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, वो भगवान के साथ उनका संपर्क होता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका आए, अमेरिका में उन्होंने प्रीचिंग करी, और जब वो आ रहे थे 30 दिन लगे उनको शिप में, और 30 दिन में 2 हार्ट अटैक भी आए उनका। लेकिन जब वो आए उनके पास कुछ नहीं थे, रिसोर्सेज, पैसे वगैरह, कॉन्फिडेंस पूरा था कि भगवान मेरे को यहाँ पे लाए हैं और ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई भगवान मेरे लिए सेवा ज़रूर है भगवान की। और एक कॉन्फिडेंस था, और धीरे धीरे भगवान की गाइडेंस थी, उनके गुरु की गाइडेंस थी अंदर से। उनका संपर्क जो था वो स्थापित था भगवान से और अपने गुरु से कि क्या करना है, और ऐसी गाइडेंस के थ्रू जब उन्होंने फॉलो किया, क्योंकि कई बार बड़ी मुश्किल मुश्किल अंदर से इंस्पिरेशन आई और गाइडेंस आई कि आप चले जाओ अमेरिका, तो ये बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी कहेगा कि कैसे कर सकता हूँ, ना मेरे पास पैसे ना कुछ, कोई भी रीज़न दे सकता है ना करने का, नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। भगवान से जब उनको आई इंस्ट्रक्शन कि ये करना है अपने गुरु से, तो उन्हें समझ लिया कि ये मेरे को सिर्फ प्रयास करना है, भगवान अपने आप इसको पूरा करेंगे, मुझे रिजल्ट पे नहीं देखना, मुझे प्रयास पे देखना है। तो ये उनको इंस्पिरेशन मिली, और उन्होंने इसके को आगे फॉलो थ्रू किया, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आने वाले सालों में इतने मंदिर हो गए आज, हरे कृष्णा टेम्पल पूरे हर शहर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। शहर में नहीं तो हर कंट्री में, और हर कंट्री में कई बार ऐसे ओपनली नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कहीं किसी घरों के अंदर लोग कर रहे हो, खासकर ये इस्लामिक कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया या अलग अलग कंट्रीज़ में, यहाँ पे ऐसे ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर लोग लगे हुए। चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब कंट्रीज़, साउथ अमेरिका, हर कॉन्टिनेंट में आप देखोगे लोग हैं। और पीछे तो कुछ डिवोटीज एंटार्क्टिका भी लेके भगवत गीता, तो 7 तो कॉन्टिनेंट्स में भगवत गीता पहुंच चुकी है। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है, और प्रभुपाद फुल्ली डेडिकेटेड थे इस मिशन पे कि जो भी भगवान ने प्रेडिक्शन की है शास्त्रों में उसको पूरी करनी ही है। तो भगवान ने उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया ये सब करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम भी भगवान की सेवा के लिए अपने आप को डेडिकेट करें, तो भगवान हमें भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना, हम आसपास अपने एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमार आज्ञा है गुरु होए तारे ही देश, कि आप, मेरी आज्ञा है कि आप अपने देश, अपनी पर्टिकुलर रीजन में
वहां पे आप इस नॉलेज को शेयर कीजिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों क्वालिटीज यहाँ पे कृष्णा ने बताई है। एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल यज्ञ को फॉलो नहीं कर रहे, जिनके लिए रिकमेंडेड है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, सिन पाप चलता है। और दूसरे व्यक्ति जिनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके लिए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम वो लोग यज्ञ और ये प्रोसेसेस दे मे फॉलो, इवन दो दे डोंट नीड, उनको ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, एक और श्लोका करते हैं फिर, अगर किसी को पॉइंट नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, नाकृतेनेह नाकृतेनेह कश्चन कश्चन सर्वभूतेषु न न चास्य तस्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रया। कश्चित् कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। अर्थव्यपाश्रयः। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पॉपट? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? प्लीज पढ़िए माता जी। Translation: A self realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reasons not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Purport: A self realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty save and except activities in Krishna's consciousness. Krishna's consciousness is not in activity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man, or demigod. Whatever he does in Krishna's consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि देखो, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले श्लोक में, जैसे बताया कि जो कृष्णा कॉन्शियस या सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है ये सब चीज़ें करने की। उसको यहाँ पे बताया कि नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने संन्यास ले लिया, तो अब उसको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो वो एक गृहस्थ के रूप में करता था, या फिर वो एक बालक के रूप में करता था, क्योंकि अब उसने संन्यास लिया है। तो अब उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो गए हैं। और कोई व्यक्ति हो सकता है वो संन्यास ना लेके अपने कर्तव्यों को करे, अपने हाउस होल्ड में रह के, लेकिन साथ ही साथ वो भगवान की सेवा में लगे। तो दोनों तरीके के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहे, वो संन्यास भी ले सकता है, लेकिन हो सकता है कोई गृहस्थ आश्रम में फिर भी रहे, लेकिन उसको नीड नहीं है। उसी तरीके से बाकी कर्तव्यों का भी यहाँ पे बात करी गई है कि उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कहीं के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, अब उनको ज़रूरत नहीं है कहीं ज़मीन साफ करने की, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे वो ज़मीन साफ करें या ज़मीन से कुछ उठाएं, तो बहुत बड़ा लोगों को लगता है कि देखो कितने हम्बल हैं, कितने अच्छे हैं। तो ऐसे कभी कभार वीडियोस भी दिखेंगे आपको कि जैसे कोई चीज़ गलत है तो नरेंद्र मोदी ने उठा के हटा ली, या फिर कोई राजा हैं और रथ यात्रा होने से पहले वो राजा जो है साफ कर रहे हैं पूरी एरिया को। तो पहले के टाइम में राजा लोग ये करते थे। तो ये दिखाने के मतलब है कि उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअली रियलाइज्ड व्यक्ति, जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, उसको वो सब कर्तव्य निभाने की ज़रूरत नहीं जो आम आदमी को करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। जैसे पुलिस भी है, उसको रूल्स रेगुलेशंस वैसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बारी, खासकर अमेरिका में, यहाँ पे वो पुलिस की गाड़ी रुकती है, अगर वो चोर को नहीं पकड़ रही वो भी रुकती है रेड लाइट पे, और वो भी रूल्स फॉलो कर सकती है। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा है, उनकी कॉन्शियसनेस भगवान में पूरी तरह से समर्पित है। तो वो काम जो है वो अपने में हाईएस्ट लेवल का है। और ऐसे व्यक्ति को किसी का शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई देवता नहीं, सिर्फ भगवान का शरण लिया हुआ उन्होंने।
और जो भगवान की सेवा में वो कर रहे हैं, दैट इज हाईएस्ट, दैट इज इनफ। तो बेसिकली कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ऐसे व्यक्ति को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अभी आगे कृष्णा समझाएंगे, लेकिन फिर भी जब कर्तव्य का पालन करने की बात आती है, कई बारी वो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अपना फिर भी कर्तव्य निभाते हैं, और उसमें वो एग्जाम्पल भी देंगे फेमस राजा का। तो वो हम अगले वीक के लिए रखेंगे, बट मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या फ्लो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हो रहा है ये प्रभु जी। अच्छा, इतनी शांति थी, मैं पूछने लगा था किसी को कहीं कुछ समझ में तो नहीं आ गया? नहीं नहीं प्रभु जी, समझ हम लोग इसलिए काम करते हो वॉल्यूम बंद करके रखते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ओके, लेकिन प्रभु जी आप बहुत अच्छा करते हैं। लास्ट वीक आपने जो रिवाइज किया था बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाद में सब अच्छे से समझ में आए, खूबसूरत है। तो आप रिविजन जो करते हैं ना वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द फीडबैक। ओके, ग्रेट। तो और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई भी आप में से? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम स्टॉप करते हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर को एक स्पेशल डे है। कोई आप में से गेस कर सकता है क्या है? 1 दिसंबर। गीता जयंती। हाँ, तो उस दिन भगवत गीता एक्चुअली बोली गई थी। भगवत गीता अवतरित हुई, ओ एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा। तो हम जनरली ऐसे टाइम पे कोशिश करते हैं भगवत गीता की रिसाइटेशन करें, हम्म इंग्लिश में, संस्कृत में। तो ऐसे हम कुछ प्लान करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर करूंगा। और हो सकता है हम अलग ग्रुप भी बना लें उसके लिए, कि हम रिसाइट कर सकते हैं। जैसे कई बार हम करते हैं एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर रिसाइट करते हैं, और पूरे 18 चैप्टर 18 दिन में हो सकते हैं। तो इस अच्छा तरीके का कुछ कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा ज्वाइन करने के लिए? प्रभु जी मैं इंटरेस्टेड रहूंगी। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और कोई हम्म। सरिता माता जी के अलावा? प्रभु जी मैं भी इंटरेस्टेड रहूंगा ज्वाइन ओके, करने के लिए। श्योर। तो हम एक अलग से ग्रुप बना लेंगे, या देख लेंगे किसको टाइम सूट करता है ना, उसी टाइम पे कर लेंगे, ताकि सब हम में से ज़्यादातर लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है। अब प्रभु जी एक और मुझे बोलना था, आपने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए, कर देंगे तो आप बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक कह रहेगा। रहे हो, मैं आज ही उस पर काम करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि ना सुनने के लिए बीच में अच्छा लगता है थोड़ा। अभी बहुत ठीक है, दिन से हुआ नहीं, मैं आपको मैसेज कर रही थी, पर आज ही मैं सोचा आपको बोल देती हूँ पर्सनली। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। ओके, प्रभु जी लास्ट वीक का वीडियो जरूर से अपलोड कर दीजिएगा श्योर, वो मैं शेयर वापस। करता हूँ हरे आपके साथ। कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की और की जय। जय।